بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا
लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा और सिर्फ अपने जानने वालों को सलाम करेगा। लोगों पर 3 एहसान करो। पहला, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो। दूसरा, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना दो। और तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। अपनी जिंदगियों से इतना प्यार ना करो क्योंकि ये किसी से वफा नहीं करती, और अपनी मौत को कभी मत भूलो क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देती। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। दुनिया में इससे बढ़कर कोई और तोहफा नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत दो, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकने लगता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। अक्सर औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं कि मैयत का मुंह ढाँप दें जिससे उसे कोई गैर महरम ना देख सके, लेकिन यकीन जानिए जिंदगी के लिए भी यही हुक्म है जिसे हम भूल बैठे हैं। रब अपने बंदे से फरमाता है, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। रात की तन्हाई में जब दुआ मांगो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सिर्फ मुझे ही सुन रहा है। इस दुनिया में हर शख्स के अंदर एक दूसरा शख्स होता है जिसे हम कभी जान नहीं पाते। शुक्र ऐसी शय है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर मसम्मत तब्दीली महसूस करने लगते हैं। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। इस दुनिया में दोस्ती का भरम सिर्फ वही रख सकता है जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। ज़बान से निकले हुए अल्फाज इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को जख्मी करते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। यादों में बड़ी ताकत होती है क्योंकि वो आज को कल में जिंदा रखती हैं। इस दुनिया में जिस दिल में खुलूस का जज्बा नहीं, वो उस सीप के मानिंद है जिसमें मोती नहीं हो। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। इस दुनिया में लोग चेहरे और माल देखते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह अपने बंदों के दिल और आमाल देखता है। गुनाह ऐसी लानत है जो कि इंसान के दिल को काला कर देता है। ए इंसान, कहीं अपनी जिंदगी आसान बनाते बनाते अपनी मौत को मुश्किल ना बना लेना। हम नेक का गुनाह और गुनाहगार की नेकी, ये दोनों ही चीज़ें हम इंसानों से दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मेरे अमाल के मुताबिक अल्लाह मुझे देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं उनसे नफरत ना करिए, क्योंकि यही असल में आपके असल चाहने वाले हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं।
लोग अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। इस दुनिया में खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। इस दुनिया में सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय वक्त और इज्जत के। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तब वो अपने अपने नहीं रहते। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया कि रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। इस दुनिया में रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। माफी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस दुनिया में उस सास से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को कुचल डाले। इस दुनिया में हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, क्योंकि बाज दफा कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं। जिंदगी को समझने के लिए आपकी उम्र ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदगी जब अपना फलसफा समझाने पे आए तो खुद ब खुद अक्ल आ जाती है। जो चीजें दिल में गूंजती रहें वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस दुनिया में कमाल करने वालों को कब लगता है कि उन्होंने कोई कमाल किया है। इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर मोम हो जाता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, और वहीं बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल हमेशा तबाही होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी तारीफ खुद ना किया करो, क्योंकि तुम में से जो नेक है अल्लाह उन्हें खूब जानता है। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दें उन्हें सोचना छोड़ दो। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर ले जो हम दूसरों को करते हैं। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस दुनिया में मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले ही तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों न कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नियत या तुम्हारी मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़ा ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होता है, लेकिन अल्लाह उससे भी बड़ा दरवाज़ा अपने फजल से तुम्हारे लिए खोल देता है। लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर किरदार पर बात आ जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरजू ये होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके जहन में है। इस दुनिया में जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप ही बेहतर है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर
दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। इस दुनिया में वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। ए अल्लाह, तेरा मेरा ताल्लुक हमेशा बरकरार रहे और छीन ले मुझसे वो सब कुछ जो मुझे तुझसे जुदा करे। सजदे से ना उठे दिल ऐसा कोई नमाजी दे, मुझे इश्क दे अपनी जात का, मुझे इस कुन से नवाज दे। इश्क वो मकाम है जहां खुदा आपसे मुलाकात करता है। हम इंसानों के दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं है, और फिर यही लोग मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं। वो शख्स काबिले मुबारकबाद है जो मरने से पहले मर गया, यानी उसको दुनिया की असल का पता चल गया। औलाद को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी जिंदगी से ताने निकाल दो। टूटी हुई चीजें जुड़कर भी पहले जैसी नहीं बन जाती, इसलिए कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, तनकीद से पहले तहकीक, इल्जाम से पहले सबूत और इख्तिलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ की अलामत है। इस दुनिया में हम लोग नेक बनना नहीं बल्कि सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यही मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। गलत को गलत खुलकर कहें, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग जहर उगलने के बाद भी कहते हैं कि मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, जो कि सामने वाला हसद का शिकार है। इस दुनिया में अपनी बेसुकूनी को खत्म करने के कुछ तरीके: पहला, अल्लाह से राब्ता मजबूत करिए। दूसरा, रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़िए। तीसरा, अपनों के साथ वक्त गुजारिए। इस दुनिया में अपनी खामियों का एहसास ही इंसान को इस दुनिया में अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी अल्लाह कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा होता है। नमाज और कुरान से ताल्लुक बना लीजिए, क्योंकि जवानी बार बार नहीं मिला करती। जो इंसान सजदे में रोता है उसे अल्लाह तकदीर पर कभी रोने नहीं देता। और इस दुनिया में जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। इस दुनिया में अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और फिर सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अपने दिन की इब्तिदा इन 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच और यकीन, क्योंकि कोशिश दिन बेहतर करने के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और यकीन अल्लाह की ज़ात पर। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। लेकिन वहीं अल्लाह सिर्फ इतना कहता है कि मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। शुक्र करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए,
बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ए अल्लाह ताला, मुझे वो ताकत ना दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं। मुझे वो दौलत ना दे जिसके खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं। मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छिपा कर रखूं। मुझे वो बुलंदी ना दे कि मुझे पस्ती में कुछ नज़र ना आए, बल्कि मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है, क्योंकि सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और वहीं शुक्र नेमत को बढ़ाता है। मुश्किल दस्तक दे तो खुशज़दा ना हो, मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है।